everyone. So now we will start with the next chapter of Standard 10 Science, that is Sustainable Management of Natural Resources. First, we should understand that what are natural resources. So students, natural resources are basically those resources which are present in our nature only. हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं दैट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. सो दीज सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. दिस कैन बी लाइक यूजिंग सोलर एनर्जी, using water resources, using precious metals and minerals, crude oil, various land resources are there, natural gas, animal resources, forest resources and wind power we are also using to generate wind electricity from using this wind. So these all are termed as the natural resources. Now, to better understand the natural resources, we must classify natural resources. So, natural resources are classified on the basis of their chemical nature as inorganic resources, organic resources and mixed resources. Inorganic resources वो resources होते हैं that do not have carbon in them, and this include air, water and metallic minerals. Whereas organic resources are plants, animals, microorganisms, fossil fuels, etc. and soil is termed as the mixed resources. Talking about the classification of natural resources based on abundance and availability, they are termed as exhaustible resources and inexhaustible resources. Exhaustible means जो चीज finish हो सकती है. So exhaustible resources are likely to be finished due to continuous human use, and these include mineral, fossil fuels, etc. क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैंड करती जा रही है, तो इस इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं उनका रेगुलर जो यूज है वो होता जा रहा है, और ये जो यूज है रिसोर्सेज का वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. तो जो रिसोर्सेज जो फिनिश हो सकते हैं, these are termed as exhaustible resources, and the resources which occur in abundance not likely to be exhausted by human use are termed as inexhaustible resources, and the examples are air, sand, tidal energy, precipitation, rain, etc. Now let us study about inexhaustible and exhaustible resources a little more. Talking about the inexhaustible resources, they are present in unlimited quantity. और ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फिनिश नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोलर रेडिएशंस, जो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं. उसी के ऑपोजिट जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और इनको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, और इसीलिए अगर हम इनको रेगुलरली जो है इनका ओवर यूज करते रहेंगे तो दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय आवर एक्टिविटीज. अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Renewable resources can be replenished by quick recycling and replacement to be exhausted, but may become non-renewable if not managed properly. हम renewable resources को फिर से replenish कर सकते हैं, but again हमें इनको बहुत judiciously जो है वो use करना होता है. For example, soil, forest and wildlife. अगर आप कोई tree cut कर रहे हैं तो आप उसकी जगह दोबारा tree जो है plant कर दीजिए. So हम इसको replenish कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, सो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट. हम इनको किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करके या रिसाइकिल करके हम इनको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं, एंड इसीलिए ये फिनिश भी हो सकते हैं. द एग्जांपल्स इंक्लूड मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा. Let us study a lot more about different things. So now I am going to tell you about natural resources management and conservation. Conservation and management, these two are very important terms that need to be understood. Conserve करने का मतलब होता है save करना, protect करना, preserve करना. So conservation is preservation from loss, waste and degradation of a resource so as to last indefinitely. किसी भी present
जनरेशन जो आज रिसोर्सेज यूज कर रही है वो उसको इस तरीके से यूज करे, उसको जुडिशियसली यूज करे, सो दैट ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक लंबे टाइम तक जो है चले। दैट मीन्स हमें इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, सेव करना है। इफ यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज बेसिकली कंट्रोलिंग यूज ऑफ अ रिसोर्स इन सच अ वे सो एज टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एंड इक्विटेबल अवेलेबिलिटी। इस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करना है सो दैट जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो और ये जो रिसोर्सेज हैं वो हम कंजर्व भी कर पाएं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो। सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज वी स्टडी हियर इज मैनेजमेंट। मैनेज कीजिए जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, आपकी नीड्स भी फुलफिल हो और फ्यूचर को भी जो है फ्यूचर जनरेशंस को भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। सो वी नीड टू मैनेज द यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज और फ्यूचर जनरेशन के लिए ताकि रिसोर्सेज अवेलेबल हो, इसीलिए हमें इन्हीं रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना है। सो दिस इज अबाउट conservation and management of resources. Now, let us study a little more. Why do we need to manage the resources? हमें इन resources को manage करने की need क्यों है? As I told you कि हमारी population जो है वो expand कर रही है, day by day जो population है वो increase हो रही है और जितनी ज़्यादा population increase हो रही है उतनी ही ज़्यादा इस population की needs को जो है fulfill करना है और इन needs को fulfill करने के लिए resources जो है उनका use होगा। बट जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है इन लिमिटेड क्वांटिटी, सो देयर इज अ नीड टू मैनेज एंड मिनिमाइज देयर यूज, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये फ्यूचर के लिए भी हमारे पास अवेलेबल रहे एंड वी नीड टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। Now there are different categories of conservation. हमें ये जो preserve करना है resources को, इसकी different categories होती हैं. The first is in situ conservation and the second is ex situ conservation. In situ, in means inside. तो जब हम रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, दैट इज टर्म्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन एंड द एग्जांपल्स इंक्लूड नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। गवर्नमेंट जो है कुछ एरियाज को मार्क कर देती है एज नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, जहां पे वो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो अलाउ नहीं होती हैं, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वहां पे नहीं हो सकता है। दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, दे कैन रोम अराउंड। वहां पे कोई भी इल्लीगल किलिंग जो है, इल्लीगल पोचिंग अलाउड नहीं होती है। सो जब उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व किया जा रहा है, दैट इज टर्म्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन। Talking about ex situ conservation, it is conservation done outside habitats. For example, zoos, seed banks, botanical gardens, etc. अब आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको जू में जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जू जो है दैट इज अ आर्टिफिशियल हैबिटेट जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, और जबकि जो नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है। तो ये जो जब उनको आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, दैट मीन्स आर्टिफिशियल हैबिटेट में जो ह्यूमंस ने जो हैबिटेट्स बनाए हैं, जब उसमें उनको कंजर्व किया जाता है, सो दैट इज टर्म्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है स्टूडेंट्स, दे आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली। काफी सारे ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है वो काफी बड़े एरिया पे नेचुरली ग्रो करते हैं एंड दैट इज टर्म्ड एज फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। रीजन बीइंग वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, बर्ड्स, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर जो है वो रिजाइड करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो दे प्रोवाइड हैबिटेट for a wide range of flora, fauna and microorganisms. Wild animals like tiger, elephant, deer, etc. also which are living in a forest, ये सारे क्या constitute करते हैं? They constitute the wildlife. So forest is the trees and the plants that grow naturally, और उन forest में जो wild animals हमें मिल रहे हैं, they constitute the wildlife. Now
मूविंग फर्दर, लेट अस स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट हैं उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। दे सर्व एज इकोनॉमिक फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस एंड रेगुलेटिव फंक्शंस। इकोनॉमिक फंक्शंस के बारे में अगर हम स्टडी करें, फॉरेस्ट जो है उससे हमें वुड जो है वो मिलती है, एंड दिस वुड इज बेसिकली यूज्ड फॉर टिम्बर, पेपर्स, डेवलपिंग स्पोर्ट्स, गुड्स, रेलवे स्लीपर्स एटसेट्रा। फॉरेस्ट जो है, जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं फॉरेस्ट में जो रहते हैं, वो फॉरेस्ट से वुड जो है वो लेते हैं, और ये जो वुड है वो उनके घर में इट इज एक्चुअली सर्विंग देम एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड एंड कीपिंग देम वार्म। वो वुड को बर्न करते हैं और विंटर सीजन्स में वो उनको वार्म रखने में हेल्प करती है। इसी तरह से फॉरेस्ट जो है उससे दे ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, मेडिसिन, टेनिन, गम, रेजिन, डाई, ड्रग्स एटसेट्रा। और ये जो फॉरेस्ट हैं दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ एंड न्यूमरस ह्यूमन ट्राइब्स। काफी सारे ह्यूमन ट्राइबल्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रिजाइड करते हैं। Talking about the protective functions, forests anchor the soil by the roots tree inhabiting them. They reduce atmospheric pollution by absorbing carbon dioxide and other toxic gases, collecting suspended particulate matter and absorbing excess noise in an area. They also provide habitat to wildlife and numerous human tribes. अगर हम फॉरेस्ट के प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट जो है वो दे आर द ओनली सोर्स, ट्रीज एंड प्लांट्स सिर्फ एक अकेला ऐसा सोर्स है जो हमारे एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट इज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है, जिस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जितना भी एयर पॉल्यूशन है, ये जितनी भी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सब को एब्जॉर्ब कौन करता है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। और क्योंकि फॉरेस्ट जो है दे आर प्रोवाइडिंग द नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, तो वो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेडर्स जो उनको किल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, they regulate climate by balancing humidity and temperature. They also replenish water table by allowing seepage of water through the soil and the regulate water cycle. Further, they maintain balance between carbon dioxide and oxygen gases present in atmospheric air. फॉरेस्ट जो है वो हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट है, ट्रीज जो है उनसे रेगुलर जो है वो वाटर इवेपोरेट होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाटर जो ट्रांसपिरेशन से जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है और जो डिफरेंट वाटर बॉडीज पे से जो वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है, ये सारा पानी जो है ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड्स बनाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन रेनफॉल। जब बारिश होती है तो क्या होता है, ये जो बारिश का जो पानी होता है, जो ट्रीज हैं, ट्रीज की रूट्स वो इस पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, और ये जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो दीज आर द सर्टेन रेगुलेटिव फंक्शंस दैट फॉरेस्ट आर सर्विंग अस। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है उससे डिफरेंट चीजें जो है वो हमें मिलती हैं। वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड डिफरेंट पीपल आर यूटिलाइजिंग दीज things from these commodities that we get from forest to fulfill their needs. Now the people who are actually responsible for using forest and forest products are termed as the stakeholders of forest. The users of the forest and forest products are called stakeholders. And who are these stakeholders? These stakeholders include the local people who are living in or around the forest. ये जो local people होते हैं ये अपनी needs को fulfill करने के लिए, for example fuel and to keep their house warm, अपनी needs को fulfill करने के लिए ये forest पे depend करते हैं. So these local people are termed as the stakeholders of forest. Next is the forest department of the government, the industrialist, जो कि forest की wood को use कर रहे हैं for developing different type of things. They are also considered as the stakeholders of forest. And next is the wildlife and the nature enthusiast. They are the other stakeholders of the forest. Now,
लेट अस स्टडी अबाउट डिफॉरेस्टेशन कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रेगुलरली जो है वो ट्रीज को कट करते जा रहे हैं एंड दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। सो डिस्ट्रक्शन, रिडक्शन और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कारण है और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहले फॉरेस्ट को क्यों कट किया जाता है? बिकॉज वी आर गेटिंग वुड फ्रॉम इट। सो टिम्बर, फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ वुड, दिस इज द फर्स्ट कॉज, दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है कल्टीवेशन का, उस वजह से भी फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। लार्जर पॉपुलेशन को फीड करने के लिए लार्जर एरिया चाहिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो काफी सारी फॉरेस्ट लैंड को क्लीन करते हैं टू ग्रो द क्रॉप्स एंड वहां पे वो प्रॉपरली जो है उस फील्ड को मैनेज नहीं करते हैं, जो कि ऑब्वियसली रिजल्ट करता है लॉस में। फॉरेस्ट फायर्स। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, तो इस वजह से भी जो नेचुरल जो ट्री कवर है उसको क्लीन किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स। जब भी डैम्स या रिजर्वायर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है वो रिक्वायर्ड होता है और वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है जब वहां पे कोई डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो नियर बाय जितना भी इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ट्रीज कट हो जाते हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है। सो इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ पीपल ऑल्सो। अब इस डिफॉरेस्टेशन के काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं दैट वी कैन सी। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। एज वी हैव स्टडीड कि जो फॉरेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का एक सोर्स होता है। ये ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्योंकि ट्रीज का नंबर जो है वो कम होता जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, विच इज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग दैट इज टर्म्ड एज द एवरेज इंक्रीज ऑफ द प्लान इन द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। वेदर चेंजेस हो रहे हैं, कोई फिक्स्ड वेदर पैटर्न जो है अब वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ टिम्बर वुड एंड फ्यूल वुड क्योंकि उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्योंकि ट्रीज की रूट्स जो हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, तो अब जब ट्रीज रिमूव होते जा रहे हैं सो इट इज रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन, floods, droughts, etc. because no trees are present now and as a result जो water है वो absorb नहीं हो पा रहा है, excess of water जो है वो absorb नहीं हो पा रहा है, that is resulting in floods. Increase in pollution levels are there because trees are not there, plants are not there to absorb the different pollutants, the loss of biodiversity. Obviously, if we are going to destroy the forest, that is a natural habitat of various animals. So, if there will be no trees, no forest, then obviously the natural habitat of these animals will be destroyed. And as a result, they will become endangered and they will become extinct. And further that we are destroying trees and forests, so we are also destroying flora of that particular area. As a result, there are various plant species that are becoming endangered and even have become extinct. So this is how deforestation is resulting in loss of biodiversity.